जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 34। मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारिणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं ही समस्त भूतों को उत्पन्न करता हूँ, मैं ही उन सब का पालन करता हूँ और अंत में मैं ही उनका संहार भी करता हूँ, इसलिए मृत्यु भी मैं ही हूँ। अब स्त्री समूह में मेरी 7 विभूतियां हैं, यह भी मैं तुम्हें यूं ही बतला देता हूँ। हे अर्जुन, जो कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती वह भी मैं ही हूँ। और 2 धर्मानुष्ठान के द्वारा धार्मिकों में जो सौंदर्य फूट उठता है, जिसे देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं, वह श्री भी मैं ही हूं। 3 धार्मिक पुरुष धर्माचरण के द्वारा जो अपूर्व वाग विभव प्राप्त करते हैं, जिनकी वाणी सुनकर सब लोग मुग्ध हो जाते हैं, मन का संदेह दूर होता है, वह कविता रसमयी भाव प्रकाशक शक्ति वाक भी मैं ही हूं। 4 स्मृति स्मरण शक्ति का नाम स्मृति है। भगवत विषयिणी स्मृति के जागृत होने पर मुक्ति का द्वार उन्मुख हो जाता है, वह स्मृति भी मैं ही हूं। 5 मेधा बुद्धि के द्वारा समझकर उसको धारण करने की शक्ति मेधा है। जिसकी मेधा जितनी तीक्ष्ण होती है, वह उतना ही अभ्युदय लाभ करता है। मेधा शक्ति भी मेरी ही विभूति है। 6 धृति मन प्राण इंद्रियों को नियमित कर चित्त को भगवद अभिमुख एकाग्र करने की शक्ति धृति भी मेरी ही विभूति है। 7 क्षमा हर्ष विषाद में उत्फुल्ल या आतुर न होना, यह सब मेरी ही विभूतियां हैं। And I am all, devouring death and the prosperity of those who are to be prosperous among the feminine qualities. I am fame, prosperity, speech, memory, intelligence, firmness, and forgiveness. I am the Supreme Lord, who is the All-Seer, because I destroy everything at the time of cosmic dissolution. I am fame, Shri and speech, which adorns the throne of justice. I am memory, which recalls objects and pleasures, and spiritual experiences of the past. I am Medha, the power of mind, Dhriti, the power to keep oneself unattached even when doing actions, and Kshama, endurance. Om. గీతాసుధ అధ్యాయము 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 34 ముచ్చు సర్వ హరిశ్చాహ మద్భవశ్చ భవిష్యతాం కీర్తి శ్రీర్వాక్చ నారీణాం స్మృతిర్మేధ ధృతి క్షమాం. అన్ని ప్రాణులు నేనే పుట్టించున్నాను, నేనే వాటన్నిటినీ రక్షిస్తున్నాను, మరియు చివరిలో నేనే వాటిని సంహారం కూడా చేయుచున్నాను. అందుచేత మృత్యువును కూడా నేనే. ఇప్పుడు స్త్రీ సమూహములో నా యొక్క 7 విభూతులు ఏవైతే ఉన్నవో వాటిని కూడా ఇదే విధంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఓ అర్జున, 1 ఎన్నటికీ నశించిన కీర్తి ఏదైతే ఉన్నదో అది కూడా నేనే. 2 ధర్మానుష్ఠానము ద్వారా ధార్మికుల్లో ఏ సౌందర్యం ఉబుకుతుందో, దేనిని చూచి ప్రజలు ముగ్ధులవుతారో ఆ స్త్రీ కూడా నేనే. 3 ధార్మిక పురుషులు ధర్మాచరణ ద్వారా ఏ అపూర్వ వాగ్విభవమును పొందుతారో అటువంటి వారి
వాక్కు విని ప్రజలందరూ ముగ్ధులయ్యే అవుతారు. వారి మనసులో సందేహం తొలగిపోతుంది. ఆ కవితారసమయ భావ ప్రకాశక్తి గల వాక్కును కూడా నేనే. 4 శృతి. స్మరణశక్తి పేరే శృతి. భగవద్ విషయ భరితమైన శృతి జాగృతమైనప్పుడు ముక్తి ద్వారం తెరుచుకుంటుంది. దీనికి కారణమైన శృతి కూడా నేనే. 5 మేధ అంటే బుద్ధితో అర్థం చేసుకుని దానిని ధారణ చేసే శక్తి ఏదైతే ఉన్నదో అదే మేధస్సు. మేధాశక్తి ఎంతగా తీక్షణమవుతుందో అంతగా అతడు అభ్యుదయ లాభాన్ని పొందుతాడు. ఆ మేధాశక్తి కూడా నా విభూతే. 6 ధృతి. మనసు, ప్రాణము, ఇంద్రియాలను క్రమబద్ధీకరించి చిత్తమును భగవద్ అభిముఖంగా ఏకాగ్రత చేసే శక్తి పేరే ధృతి. ఆ ధృతి కూడా నా విభూతే. 7 క్షమ అంటే హర్ష విషాదముల్లో వ్యాకుల పడకుండా ఉండడం. ఇది కూడా నా విభూతే. ఈ విధంగా ఈ పై చెప్పిన 7 విభూతులు నా విభూతులే. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణ. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 10 श्लोक 34. सर्व भूतांना मीच निर्माण करतो, मीच त्यांच्या जन्माचा कारण आहे, मीच त्यांचे पालन पोषण करतो आणि शेवटी मीच त्यांचा नाश करतो, म्हणून मीच स्वतः मृत्यू आहे. आता त्रिसमूहांमध्ये माझी 7 विभूतीत आहे, हेही मी तुला असेच सांगून देतो. हे अर्जुना, नंबर 1, जी कीर्ती कधीही नष्ट होत नाही ती सुद्धा मीच आहे. आणि नंबर 2, धार्मिक लोकांमध्ये धार्मिक आचरणाने जे सौंदर्य फुलते, जे पाहून लोक मंत्रमुग्ध होतात, तो श्री सुद्धा मीच आहे. नंबर 3, जे धार्मिक पुरुष धार्मिक आचरणाने अतुलनीय वाक्पटुता प्राप्त करतात, ज्यांचे शब्द ऐकून सर्वजण मंत्रमुग्ध होतात आणि मनातील शंका दूर होतात, ती काव्यमय आणि भावना व्यक्त करणारी वाक शक्ती सुद्धा मीच आहे. नंबर 4, स्मृती. स्मृती शक्तीचे नाव स्मृतीच आहे. जेव्हा ईश्वरीय विषयांची स्मृती जागृत होते तेव्हा मुक्तीचे दार उघडते. ती स्मृती सुद्धा मीच आहे. मेघा. बुद्धीद्वारे आकलन करण्याची जी शक्ती आहे ते टिकवून ठेवण्याची शक्ती म्हणजेच बुद्धिमत्ता होय. बुद्धी जितकी तीक्ष्ण तितक्या त्याला अधिक समृद्धीचा लाभ होतो. बुद्धिशक्ती हे सुद्धा माझेच वैभव आहे. नंबर 6, धृती. मन, प्राणशक्ती आणि इंद्रिय यांचे नियमन करण्याची आणि मनाला ईश्वराकडे जागृत करण्याची जी शक्ती धृती, ही सुद्धा माझीच शक्ती आहे. नंबर 7, क्षमा. आनंदात किंवा दुःखामध्ये उत्तेजित किंवा चिंताग्रस्त न होणे या सर्व माझ्याच शक्ती आहेत. आणि मी सर्व या गोष्टी सगळ्या माझ्यामुळेच उत्पन्न होतात. मी सर्व भक्षक मृत्यूच आहे आणि जे समृद्ध होणार आहे त्यांची समृद्धी सुद्धा मीच आहे. स्त्री गुणांमध्ये मी कीर्ती, समृद्धी, वाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढता आणि क्षमा आहे. मी तो परमेश्वर आहे जो सर्व काही ग्रहण करणारा आहे. कारण मी ब्रह्मांडीय प्रलयाच्या वेळी सर्व काही नष्ट करतो. मी कीर्ती, श्री आणि न्याय सिंहासनाला शोभा देणारी वाणी आहे. मी स्मृती आहे जी भूतकाळातील वस्तू, सुखे आणि आध्यात्मिक अनुभवांची आठवण करून देते. मी मेघा, मनाची शक्ती, धृती, कर्म करतानाही स्वतःला अनासक्त ठेवण्याची शक्ती आणि क्षमा, सहनशीलता मीच आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 10, ശ്ലോകം 34. മൃത്യുഹ സർവഹർച്ചാഹ മൃദുഭവച്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തിഹ ശ്രീർവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാദൃതിഹ ക്ഷമാം. ഞാനാണ് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഞാനാണ് അവരെയെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നതും അവസാനം അവരെയെല്ലാം സംഹരിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ അഥവാ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നത ഗുണങ്ങളിൽ എന്റെ 7 വിഭൂതികളുണ്ട്. അവയും
ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം. ഹേ അർജുന, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത കീർത്തി ഞാനാണ്. ധർമാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ധാർമ്മികരിൽ വിരിയുന്ന ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന സ്ത്രീ അഥവാ ഐശ്വര്യവും സൗന്ദര്യവും ഞാനാണ്. ധാർമ്മികർ ധർമാചരണത്തിലൂടെ നേടുന്ന എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുകയും മനസ്സിലെ സംശയങ്ങൾ നീക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കവിതാരസപൂർണമായ ഭാവങ്ങളെ പ്രകടമാക്കുന്ന വാക്ശക്തിയും അഥവാ വാണിയും ഞാനാണ്. സ്മൃതി എന്നത് ഓർമ്മശക്തിയാണ്. ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഉണരുമ്പോൾ മോക്ഷത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നു. ആ സ്മൃതിയും ഞാനാണ്. മേധ എന്നത് ബുദ്ധിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ ധരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ്. ഒരാളുടെ മേധ എത്ര തീക്ഷ്ണമാണോ അത്രയും കൂടുതൽ പുരോഗതി അവൻ കൈവരിക്കുന്നു. ആ മേധാശക്തിയും എന്റെ വിഭൂതിയാണ്. ധൃതി എന്നത് മനസ്സിനെയും പ്രാണനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ചിത്തത്തെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഏകാഗ്രമാക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. ആ ധൃതിയും എന്റെ വിഭൂതിയാണ്. ക്ഷമ എന്നത് സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും അമിതമായി ഉല്ലസിക്കാതെയും വിഷമിക്കാതെയും സമചിത്തത പാലിക്കുന്ന ഗുണമാണ്. ഈ ക്ഷമയും എന്റെ വിഭൂതിയാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. मृत्यु सर्व हरश्चाह मुभगवदश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा. हम ही समस्त भूत सबके उत्पत्ति करैत छी, हम ही ओकर पालन पोषण करैत छी आ अंत में हम ही ओकर संहार सेहो करैत छी. एहि कारण मृत्यु सेहो हम ही छी. हे अर्जुन, आब स्त्री समूह में विद्यमान हमर 7 विभूति सबके वर्णन सेहु सुनू. पहिल, कीर्ति. जे कीर्ति कखनो नष्ट नहीं होइत अछि से हम ही छी. दोसर, श्री. धर्माचरण आ धर्मानुष्ठान के प्रभाव सँ धार्मिक व्यक्ति के जीवन में जे दिव्य सौंदर्य, शोभा आ मंगलमय आभा प्रकट होइत अछि, जाहिसँ लोक मुग्ध भऽ जाइत अछि, ओ श्री सेहो हम ही छी. तेसर, वाक. धार्मिक पुरुष धर्म पालन द्वारा जे अद्भुत वाग विभव प्राप्त करैत छथि, जिनकर वाणी सुनि लोक सबके संदेह दूर होइत अछि आ मोन आनंदित भऽ जाइत अछि, ओ रसपूर्ण भाव प्रकाशिनी वाणी शक्ति सेहो हम ही छी. चारिम, स्मृति. स्मरण करबा के शक्ति के स्मृति कहल जाइत अछि. जखन भगवत विषय के स्मृति जागृत होइत अछि तखन मुक्ति के द्वार खुजऽ लगैत अछि. ई स्मृतियो हमर विभूति अछि. पांचम, मेधा. बुद्धि सँ बुझल गेल वस्तु के धारण आ सुरक्षित रखबाक शक्ति मेधा कहल जाइत अछि. जेकर मेधा जतेक तीक्ष्ण होइत अछि ओ ततेक उन्नति आ कल्याण प्राप्त करैत अछि. ई मेधा शक्ति सेहो हमर विभूति अछि. छठम, धृति. मौन, प्राण आ इंद्रिय सबके नियमित कऽ कऽ भगवान दिस एकाग्र करबाक शक्ति धृति कहल जाइत अछि. ई धृति सेहो हमर विभूति अछि. सातम, क्षमा. हर्ष वा विषाद के अवस्था में अत्यधिक उल्लसित वा व्याकुल नहीं हैब. सहनशीलता आ क्षमाशीलता धारण करब. ई क्षमा सेहो हमर विभूति अछि. एहि प्रकार कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति आ क्षमा ई 7 दिव्य शक्ति सब भगवान के विभूति रूपेण प्रकट होइत छथि. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.